promised or he introduced you, he will be having some star gazing, some astronomy program. So those activities will be very good for your academic interest or your academic future interest. And then today what I am going to talk about is communicating with the universe. So like Dr. Mohit Tyagi, he introduced about the National Space Day. Then what he suggested that every night you see in the sky you have moon, in the daytime you can see sun. So these are the visible objects. You can see through your eyes, or even in night you can see through your the twinkling of the stars, and many activities you can see in the sky. Then one wonders how these things are working. So this part is something called the visible universe. That means you are able to see this part of universe. But the problem is you don't know many of the things how these things are working. So what I am going to talk about is something called the invisible universe. That your eyes are sensitive to some light, your eyes can see something, or your ear can listen something, but there are something neither your eye can see nor your ear can listen. But even though you have to guess, like Chandrayaan is sent to moon, you want to know what is there in the moon surface, whether you can stay there, you can go there, you can live there. So these things scientists are trying to explore. But here, what I am going to talk about the certain things which are not visible to you, but still you want to know many things. So as we go along for next 30, maybe 20-30 minutes, you will see, and I am not going to tell about any science. This is just only the motivations. You at this young stage, if you have some opportunity, you see the pictures, you see how people are thinking, and then you start also critically think about these things. And when you become eligible for doing science, for science I believe there is no eligibility. But as far as the academics is concerned, you have to complete certain academics. But you can start thinking at any level. You can think today, tomorrow, or day after. So my talk is just knowing something about the invisible universe, how things are being done. So just I request you attentively listen my lecture for 30 minutes. And already Dr. Vrindavan Modak has suggested you. I don't know how many questions, but few questions you may get the answer from this talk. So there will be a quiz followed by this talk. So you be attentive. You can ask questions, but I would suggest first let me finish my presentation, then you can ask questions. I will be here during this program. You can ask, or outside also you can ask. But even if you have any curiosity in between the talk, please ask. Don't शर्माओ मत कि हमें नहीं पूछना. And your principal suggested me I should speak in mixed language also, Hindi and English. So that the purpose of this workshop is to communicate maximum things. Like the communication is the first word in my title. So I have to communicate maximum things, not just showing many things. तो आप जैसे समझते हैं आप मुझे बोलिए हिंदी में, आई विल स्पीक इन हिंदी. अगर आप बोलते हैं इंग्लिश में तो अगर मिक्स तभी चलेगा. आप लोग बताइए किसमें मिक्स के इंग्लिश हिंदी इंग्लिश मिक्स ओके. So अगर आप see if you see communication you know, if you are studying English literature something, you go to the dictionary, you search the meaning for word communication. So you will see communication is done by two means. One is you can talk to someone. Okay, you are talking to someone. आप किसी से बात कर रहे हैं, then you are communicating with him or her. So then your ear is working. And उसका स्पीड कितना होता है? Around 330 meter per second. So the sound moves with a speed of 330 meter per second. And then it has, because it's wave, it has certain frequency. Okay, the frequency your ear is sensitive is how much? It is 20 hertz to 20 kilohertz. So any sound wave coming in that range, your ear will listen, and you will come to know what somebody is saying. Okay, the other way of communication is through visual communication. That means you can see someone and then आँखों से इशारे करके बात कर सकते हैं. So that is the second part. So there also your eye is working, but your eye cannot see all the light. So eye is the best detector, but it can detect very small portion of light. Okay, जिसको हम बोलते हैं that is called the visible light. So again it is a radiation or it is a wave. So it has a wavelength from 400 to 800 nanometer.
तो अगर उस वेवलेंथ रेंज में कोई लाइट आएगी, your eye will be very sensitive and you can see what is happening. So आप अपने साइंस क्लास में पढ़ते होंगे, to see any object first you need to throw some light on the object. That light will be reflected from that object, the image will be caught on the retina of your eye, then you will see it. Okay, this is the normal science you know. So but not all light which are reflected from that object you want to see will be detected by your eye. Only a small wavelength range from 400 to 800 nanometer, and in that wavelength range also is the most sensitivity is in the yellow light. So your eye, if you see the response of your eye, the maximum sensitivity is when the wavelength of that light is 550 nanometer. That is the yellow light. So your yellow light is the maximum sensitivity for your eyes. Okay. So you can communicate in two ways. If you know something by talking to him or her, or by seeing him or her. So these are two ways. But what I am going to talk about is we want to know about our universe. So as I said, our eyes can see something, but it is very limited scope. You can see moon, you can see star, you can see sun, and you can see some planets also, but not all. But universe जो है उससे बहुत बड़ा है. It is not your just. When we started astronomy, it was thought that only Earth is the whole universe. Okay. Then people start thinking, अगर Earth पूरा universe है, तो moon कहाँ से दिखता है, sun कहाँ से दिखता है? Then they said, okay, there is a solar system, और solar system में Earth जो है center पे है, ऐसा माना गया. Then again it was realized, no, Earth is not at the center. Center पे क्या है? Sun. Sun is at the center of our solar system or the planetary system, different planets, and all are revolving around each other. Okay, that was the picture. Then they said, no, there is something beyond that. Then the idea came, we are in a galaxy. Okay, that is called the Milky Way galaxy. Then it was decided, okay, our solar system is at the center of the Milky Way galaxy. But again, there is not only single galaxy, there are billions of galaxies. And we are not having any special position on Earth, just we are a very tiny space in the universe. So this big structure, if you want to know, then your eye cannot work. You have some limitation for seeing the farther object, or your ear cannot listen all the sounds coming from the space. Then people started thinking about the telescope. So you make a telescope which can see, and you know who made the first telescope. Okay? Who made the first telescope? Galileo. He made the first telescope in 16th century, and then the proper astronomy started. So when you start looking into the universe, so like you see even if you see your sky, it is not constant. Sometimes you see many stars twinkling, sometimes it is very less stars twinkling. It is changing. It is not a constant picture you have. So the message is coming from the universe, it is changing regularly. Then you need to see how things are changing, what are things happening. So then we, as a scientist or as a researcher, then you start asking questions. Because question पूछे आंसर नहीं मिलता. So you have to ask questions. So the questions are two. पहले तो वो चीज़ है कहाँ यूनिवर्स में, what is there in the universe. कोई चीज़ you want to know वो कहाँ पे है. The next question is, अगर वो वहाँ पे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे लाइट आ रही है और वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो what is the process going on. वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ हो रहा है कि you are able to listen. Okay, जैसे आपके घर में अगर कहीं पे डीजे बजता है, यू कैन सी यहाँ पे कुछ लाउड स्पीकर बज रहा है, बट वहाँ पे कौन सा लाउड स्पीकर बज रहा है या वहाँ पे कौन सी लाइट ऑन हो रही है, यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. देन but somehow you have the signal, you have the some light, some signal is coming. Now then you start thinking ये कैसे हो रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है. दैट इज कॉल्ड द रिसर्च. एंड इफ यू एक्सप्लेन समथिंग, अगर वो सबको पसंद आया, एवरीबॉडी लाइक्स इट एंड साइंटिफिकली इट इज करेक्ट, then people get Nobel Prize. Okay. Next. So अगर हमको अपना यूनिवर्स जानना है, so what we know about our universe, the first thing is like here we are sitting, the first thing you ask your brain, first you come to school, कि आपका बर्थडे कब है. Okay. Birthday you remember and you celebrate also. You go to some canteen, some mall or something. But here our universe has no date of birth because we don't know when it was born. It is only assumed that it has some beginning, but what is the time t is equal to 0, we don't know.
because your birth cycle not when you are born that your t is equal to 0. You are born at suppose 10 o'clock, then that is t is equal to 0. From there your age starts. But for universe, we don't know when it was born. But then that's why it is called, there is a day without yesterday. That means you know today, but yesterday what was there we don't know. So but a larger picture is there. Our universe started with a big bang. Okay, there was some kind of explosion. Within that, during that explosion, large amount of radiation in the form of light was produced. Okay, so उसके बाद within 3 minutes जब वो हुआ होगा, उससे within 3 minutes वो लाइट से मैटर बना. मैटर मतलब जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, जैसे आप अपना अभी अपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे. यू हैव एटम, then inside atom you have nuclei, inside nuclei you have proton and neutron, and अगर एटम है तो न्यूक्लियाई के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग और भी ये पढ़ा होगा ना. तो और आप ये पढ़ा होगा कि दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स. जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स. दैट मींस ये पार्टिकल किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है. इसका नेक्स्ट कोई आप इसको फर्दर तोड़ के कुछ निकाल नहीं सकते. लेकिन अभी तक जो रिसर्च हुआ है उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, किसी से नहीं बना है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दूसरे पार्टिकल से बने हुए. ओके, और उनको बोलते हैं क्वार्क. खाली आपको नाम सुनना है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हैं, एक दूसरे पार्टिकल जिसको बोलते हैं क्वार्क. ओके, तो ये जो क्वार्क बने थे, ये जब बिग बैंग हुआ उससे विदिन 3 मिनट के अंदर ही क्वार्क बन गया. ओके, देन उस क्वार्क को दे केम क्लोज टू ईच अदर. उससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन फिर एक दूसरे के नजदीक आए, उससे आपका न्यूक्लियाई बना, न्यूक्लियस बना, और फिर इलेक्ट्रॉन उससे क्लोज आया तो एटम बन गया. तो ये सब जो है विदिन 3 मिनट्स में ऑलमोस्ट हो गया था. धीरे धीरे फिर एटम से आपको मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से चीज मैटर बनता गया. एंड आज जो एज हमारा जो यूनिवर्स है, नाउ वी आर सीइंग द होल ह्यूमन बॉडी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मेनी थिंग्स वी आर सीइंग. सो दिस होल टाइम हैज टेकन, the whole time it has taken up 14 billion years. That means अभी जो यूनिवर्स की एज है इट इज अराउंड 14 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं यूनिवर्स को बने हुए. और हम आज प्रेजेंट में है जहाँ पर यू कैन सी गैलेक्सी, यू कैन सी एनीथिंग व्हाट एवर यू कैन इमेजिन. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्स की साइज क्या है. तो अगर हम नंबर्स की बात करें, यूनिवर्स में क्या क्या नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि आप नंबर इन योर लाइफ, आप कितने साल के हो, आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो. दीज आर द नंबर्स व्हिच डिस्क्राइब योर लाइफ और यू डिस्क्राइब यू. सो लाइफ यूनिवर्स आल्सो कंसीडर वन ऑफ योर ऑब्जेक्ट. सो इट हैज अ लाइफ एज ऑफ 14 बिलियन ईयर. बिलियन आपको पता है ना, सबको बिलियन पता है. 1 बिलियन इज 10 to the power 9 ईयर्स. ओके, सो अराउंड 14 बिलियन ईयर्स. साइज इज अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स. लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ओके, यूनिट तो पता होगी, मास की यूनिट होती है ग्राम, किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड, आवर, मिनट. इसी तरह से लेंथ की एक यूनिट होती है, जैसे आप किलोमीटर में, मीटर में डिस्टेंस मेजर करते हो, उसी तरह से एक दूसरी यूनिट दी गई है एस्ट्रोफिजिक्स में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर. इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है सबको, और एक साथ नहीं पता है. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अगर आप उस स्पीड से लाइट चल रही है और वो एक साथ तक चलती जाएगी, तो जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. ओके, तो उसकी अभी अगर हम उसको डिस्टेंस को यूनिवर्स के साइज में बात करें तो वो 93 बिलियन लाइट ईयर हो चुका है. अगर उसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 10 to the power 26 किलोमीटर इज द नोन साइज ऑफ यूनिवर्स. ओके, तो आपको जैसे अभी आपको बताया गया कि आप मून जो है, मून आप देखते हो, मून अराउंड 4 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम यू. या आप सन देखते हो, जो सन से लाइट निकलती है, इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स टू रीच ऑन अर्थ. तो अगर आपको डिस्टेंस सन की निकालनी हो, कैसे निकालोगे? आपको टाइम पता है कि 8 मिनट लगते हैं लाइट जो एमिट हुई वहाँ से और जो आपके पास आई. तो और लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो 8 मिनट को उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको सन की डिस्टेंस पता चल जाएगी. तो एंड डेंसिटी, डेंसिटी तो फिजिकल टर्म आपको पता होगा. व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी. तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इसकी डेंसिटी है वेरी स्मॉल, 10⁻⁻26 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दैट मीन्स नेग्लिजिबल.
You cannot measure the density. So and the universe, it is not like static. सब कुछ static नहीं है. Universe is expanding. It is not a static universe. It is that means its size is increasing, and then it is expanding. Then what is the speed of expansion? It is around 70 km per second. So with the speed of 70 km per second, जितनी तेज आपकी कार रोड पे चलती है हाईवे पे, उतनी स्पीड से आपका यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हो रहा है. उसको मेजर करने के लिए अगर आप कोई दो गैलेक्सी लो, ओके, दो गैलेक्सी यूनिवर्स में अगर उनके बीच की दूरी 10⁻19 किलोमीटर के ऑर्डर की है, तो जो एक दूसरे को दूर जा रहे हैं, दैट स्पीड विल बी 70 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, so these are some numbers where you can describe our universe, but unfortunately thing is that we don't know many things about universe. Only 5% of the universe is known. That means कि अगर हम बात करें यूनिवर्स किससे बना हुआ है, what are the elementary things जिससे यूनिवर्स बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो ये आप एलिमेंट्री पार्टिकल जानते हो, आप पढ़े हो, हर चीज़ इसी से बनी है. ओके, जितने भी मैटर हैं हर यूनिवर्स में सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं. तो ओनली ऐसा पता चलता है कि ओनली 5% ऑफ दिस things are made by the known elementary particles. The rest of the 95% is unknown. किस चीज से बना है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसमें क्या है, we don't know. ओके, तो इसीलिए 95% यूनिवर्स को बोलते हैं डार्क यूनिवर्स. और उस डार्क यूनिवर्स में दो चीज है, एक है डार्क मैटर और दूसरा है डार्क एनर्जी. अब ये दो टर्म है बिकॉज हमको इतना चीजें नहीं पता है कि ये एनर्जी के फॉर्म, बिकॉज यूनिवर्स क्या है, एक्सपैंड हो रहा है. दैट मीन्स दो गैलेक्सी के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो दो गैलेक्सीज को रिपेल कर रही है, बट वो रिपेल क्या है, रिपल्सन क्यों हो रहा है, दैट वी डोंट नो. इसलिए उसको बोले देयर इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी. और जो गैलेक्सी है वो किस चीज से बनी है, गैलेक्सी के बीच क्या मैटर है वो हमको नहीं पता है, इसलिए उसको बोलते हैं डार्क मैटर. ओके, तो अभी जो मैंने इतना चीज आपको बताया, so how, because you cannot go to any galaxy, still you are struggling to reach moon which is within your reach, so you cannot go to any galaxy and see यहाँ पे डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी क्या है. but many things we know, मैंने आपको नंबर्स बताए, somehow we know those numbers. वो हम कैसे जानते हैं, तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स इज नॉट सिटिंग क्वाइटली, यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग विथ अस. It is sending messengers from their different from its different corners. It is sending messengers. Now it is job of human being, job of scientists to catch those messengers and then start thinking how these things are coming, what is the information they are carrying. Like you talk your mobile, आप जिसमें ने बताया आपका कान जो है, it is sensitive to frequency 20 Hz to 20 kHz. बट आपसे कोई आपको मान लो डेली बैठा आपसे बात कर रहा है, दैट फ्रिक्वेंसी इज नॉट, वो फ्रिक्वेंसी किसी एक दूसरे फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट होकर आती है. रेडियो फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होती है, जब आपके रिसीवर पहुंचती है तो डीमॉड्यूलेट होकर आपको जो आपका ऑडिबल रेंज है उस पर सुनाई पड़ता है. इसी तरह से ये जो आपका मैसेंजर्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से आ रहे हैं. अभी आपका साहब मोबाइल क्या करता है, बाकी फ्रिक्वेंसी को हटा दिए, जो आपका कान सुन सकता है उसी फ्रिक्वेंसी को आपके कान में पहुँचाए. ओके, उसी तरह से ये यूनिवर्स जो है अलग अलग मैसेंजर्स भेजता है. बट ओनली थिंग इज हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू नो दिस मैसेंजर्स कमिंग, हाउ टू मेजर दोज मैसेंजर्स. सो दे आर, वन इज कॉल्ड द कॉस्मिक रेज. ओके, कॉस्मिक रेज मीन्स particles, charged particles in the form of electron, proton, neutron, different charged particles or alpha particle. You will come to know these are different particles जो वहाँ से यूनिवर्स भेज रहा है कंटिन्यूसली, ये आपके ऊपर अर्थ को बम्बार्ड कर रहे हैं. Now you measure them and then see what is their energy, इतना एनर्जी कहाँ से मिला, these things. So one messenger is cosmic ray. Okay, other messenger is something called neutrino. Neutrino एक पार्टिकल है जिसका अभी मास हमको नहीं पता किसका मास कितना है, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन किसका एग्जैक्ट मास कितना है, बट दे आर वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स आर क्रॉसिंग योर बॉडी. तो वो आ रहे हैं बट उनका इंटरेक्शन इतना कम है कि यू कैन नॉट फील देयर प्रेजेंस, बट दे आर कमिंग एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद योर बॉडी. सो यू हैव टू सी वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी एनर्जी इतनी कहाँ से मिल रही है. देन यू हैव टू मेक अ डिटेक्टर टू नो अबाउट व्हाट इज द मैसेज बीइंग कैरीड बाय न्यूट्रिनो. तीसरा है अभी रिसेंटली आपने जो ग्रेविटेशनल वेव. ग्रेविटेशनल वेव क्या है, अगर आप कोई एक मैसिव ऑब्जेक्ट लो, बहुत बड़ा मास ले लो, अगर उसको घुमाना स्टार्ट कर दो तो आपका जो टाइम और स्पेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. आपको दिखेगा नहीं लेकिन स्पेस टाइम डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, वो जो स्पेस टाइम डिस्टर्ब होकर जो प्रोपोगेट होता है मीडियम में उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव. जैसे आप एक पत्थर लेके तालाब में देखते हो तो वेव जनरेट होती है ना, इसको तक आप पानी
जो साइलेंट वाटर था उसको आपने डिस्टर्ब किया, तो जो डिस्टर्बेंस था वो आपके तालाब में या नदी में आगे बढ़ने लगा। इस तरह से स्पेस में अगर बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मास का, वो भी आपके स्पेस को डिस्टर्ब कर देता है। स्पेस मतलब आप मुझे पानी, स्पेस में समझ लो, उसको डिस्टर्ब कर देता है। वो जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव। अब वो भी आ रही है, अभी ये जस्ट 15-10 साल पहले पता चला कि एक ग्रेविटेशनल वेव भी आ रही है और डिटेक्ट भी हो चुकी है। तो अभी हमको देखना है हम ऐसा डिटेक्टर बनाएं जिससे हमको ग्रेविटेशनल वेव भी पता चल जाए। और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन तो आप यही कराते को नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो मैंने विजिबल लाइट की बात की, जो आपकी आंख सेंसिटिव है, इट इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ बिग थिंग, दैट बिग थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। It has many things. It starts from radio wave, then microwave, then you have from radio, microwave go to visible light, then X-ray, gamma ray, UV, infrared. Any form of light, any form of radiation is called the electromagnetic radiation. तो अगर रेडियो वेव क्या होगी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। ओके, लेकिन उसमें स्मॉल पार्ट जब वो अगर आ रहे हैं हमारे अर्थ पे, तो सभी हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि सभी लाइट को आने नहीं देता, कुछ को ब्लॉक कर देता है, कुछ को यहाँ आने देता है। तो अगर जो जिसको ब्लॉक कर दे रहा है, अगर हमको उसको डिटेक्ट करना है तो आपको सैटेलाइट में ऊपर अपने अर्थ सरफेस से ऊपर जाना पड़ेगा, इसीलिए हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अगर हमको जो अर्थ पे पहुँच रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको अर्थ पे टेलीस्कोप बनाने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी एक नाम है, बट उसमें अलग अलग मैसेज है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है, माइक्रोवेव आ रही है, विजुअल लाइट आ रही है, एक्सरे आ रही है। ओके, तो अगर हम कॉस्मिक रे की बात करें, कॉस्मिक वर्ड कहाँ से मिला? सबसे पहले जो यूनिवर्स था, जब नाम दिया जा रहा था तो यूनिवर्स का पहले नाम कॉस्मोस था। ओके, क्या नाम था? कॉस्मोस। यूनिवर्स नाम बाद में आया। तो कॉस्मोस जो रेडिएशन यूनिवर्स से एमिट हो रहा था, फिर इसको बोल दिया कॉस्मिक रे। तो कॉस्मिक रे का नाम वहाँ से आया। तो कॉस्मिक रे जो है ये ऐसे होते हैं कि जो चार्ज, मैंने बताया चार्ज पार्टिकल तो हमारे अर्थ को कंटिन्यूसली बम्बार्ड कर रहे हैं, हर डायरेक्शन से साइमल्टेनियसली आ रहे हैं और हमको बम्बार्ड कर रहे हैं। तो इसको डिस्कवर किया 1912 में एक ऑस्ट्रियन रिसर्चर, उनका नाम था विक्टर हेच। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैलून लिया और उस बैलून को ऊपर उसमें डिटेक्टर रखा और उसको अलग अलग हाइट पे ले गए। उन्होंने देखा जब हम अर्थ सरफेस हम ऊपर जा रहे हैं तो उस डिटेक्टर पे सिग्नल बढ़ रहा था। उन्होंने ये बताया कि इसका मतलब ऊपर से कोई रेडिएशन ऐसा आ रहा है जो कि ऊपर उसकी हम जब जा रहे हैं तो उसका सिग्नल बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि बिकॉज डिटेक्टर क्या था, वो चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर था। उन्होंने बोल दिया कि ये मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। तो लेकिन जब बाद में उसको देखा गया तो अराउंड 90% जो कॉस्मिक रेज है वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स है। अब ये कहाँ से आती है, जो आज रिसर्च हुआ पता चला कि इनकी रेंज कितनी है। ये एनर्जी है, आप एनर्जी समझो कि एक यूनिट होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अगर आप टेनिस खेलते हो तो अगर कोई टेनिस बॉल जो है अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता होगी, हाफ mv²। आपको पता है किसी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv²। तो अगर उसका मास ले लो जो टेनिस बॉल है m और उसकी स्पीड ले लो 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी अराउंड 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से कॉस्मिक रेज अलग अलग जगह जा रही है। कुछ कॉस्मिक रेज हमारे सन से आ रही है, कुछ कॉस्मिक रेज हमारे सन के बाहर से हमारी गैलेक्सी से आ रही है, और कुछ कॉस्मिक रेज जो एनर्जी है वो हमारी गैलेक्सी से बाहर से आ रही है। तो ये हमारे अर्थ पे आ रही है। तो अभी जब हम कॉस्मिक रे की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट डॉक्टर होमी जे भाभा, जो आप लोग यहाँ BRC हो, यू नो व्हाई वी आर हियर, बिकॉज ऑफ यू मनी, ये क्रिएटेड दिस प्रोग्राम। तो हमको ये पता है कि जैसे आप एक वर्ड सुनते होंगे, डॉक्टर होमी भाभा इज द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, भाभा ऑल्सो वर्क ऑन कॉस्मिक रे। तो एज आई मेंशन, कॉस्मिक रे डिस्कवर कब हुई थी? 1912 में। लेकिन भाभा ने 1936 में थियरी दिया कि जो कॉस्मिक रेज आती है वो ऐसे हमारे अर्थ सरफेस टकराती नहीं है, वो अर्थ के ऊपर अराउंड 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस वो एक फ्लैश ऑफ लाइट ऐसे प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपको डिटेक्ट करना है तो सीधा कॉस्मिक रे नहीं डिटेक्ट करना है, उसका जो सेकेंडरी पार्ट है, जैसे आप क्रैकर्स जला देना दिवाली में तो ऊपर जाकर फिर एक फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट करता है, उसी तरह से वो कॉस्मिक रेज ऊपर से आ रही हैं और 100 किलोमीटर ऊपर ही एक फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट कर रही हैं, उसको बोलते हैं शावर।
अब उस शावर को डिटेक्ट करना है, शावर ऑफ लाइट या शावर ऑफ पार्टिकल, तो वो थियरी किसने दिया था? भाभा ने, वो 1936 में। और उसी थियरी को यूज करके आज जितने भी कॉस्मिक रे डिटेक्टर इंडिया में या वर्ल्ड वाइड बनाए गए हैं, दैट इज द बेसिक थियरी जो बताती है। दूसरा फिर भाभा ने खुद क्या किया, 1956 में उन्होंने खुद एक बलून एक्सपेरिमेंट बनाया डिटेक्ट करने के लिए। वो बेंगलोर से लेके दिल्ली तक उन्होंने उसमें फ्लाई किया अराउंड 43 किलोमीटर हाइट पे, और उन्होंने मेजर किया कि कितनी इंटेंसिटी कॉस्मिक रे ऊपर कैसे जा रही है। भाभा ने दूसरा काम वो किया। देन उन्होंने बोला कि नहीं, हम ग्राउंड पे भी डिटेक्टर बना सकते हैं। देन इन 1963 ही मूव टू गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर में एक गुलमर्ग अराउंड 2.2 किलोमीटर हाइट पे एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे उन्होंने फिर एक लेबोरेटरी बनाई जिसका नाम रखा हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। ओके, तो भाभा ने वहाँ पे 63 की लेबोरेटरी बनाई थी, जिसपे से आप देखिए छोटे छोटे टेलीस्कोप लगे हैं उस टाइम पे, जो कि ये जो लाइट वहाँ एमिट हो रही है उसको वो डिटेक्ट करते हैं। ओके, सो नाउ देयर नाउ वी हैव लेगेसी दैट टुडे इन माय इंट्रोडक्शन इट वाज टोल्ड आई एम वर्किंग इन एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस डिवीजन। So it is that legacy that high altitude research laboratories now has moved to Mumbai, and the division is called the Astrophysical Sciences Division. So the astrophysics research was being done in BRC is the legacy of Dr. Bhabha, who started this cosmic research apart from doing this atomic energy program. So these are just pictures. So there are many experiments worldwide which are detecting this light. So one important thing is this picture. This is our own facility in Ooty. If you go for your summer break or something in Ooty, then you will see these detectors. You see around 1000 detectors. These are detectors. They are kept there around 1 square kilometer area, and they are detecting the cosmic rays. So this is the Indian facility. So we have mastered ourselves in developing detectors for cosmic ray from the Earth's surface, as was suggested by Dr. Bhabha. Then other messenger radiation is the electromagnetic radiation. So again I will say you have radiation with you have the radio wave, you have the X-ray, microwave, you have the visible light, anything is coming. So but again you see your eye is sensitive to some small portion of radiation. So if you want to see your visible light, it is coming around in 400 to 800 nanometer, you will see very good picture like a baby you can see. But if you want to see through X-ray, you know, if you have something fracture happens, you visit hospital, first thing doctor suggests you do X-ray. You see the X-ray, how a human look like, and if you see other light like ultraviolet or infrared, you will see different thing. So that means a single object, if you use different light, you will see different pictures. So now coming to the gamma ray. So gamma ray is the highest energy of the spectrum. Like I said, radio, one in the radio is the lowest energy, other is the gamma ray. So you have the highest energy photon as the light coming from that. So how to detect? Now in BRC what we are doing, we are focusing on detecting this gamma ray. So that is called gamma ray astronomy. Each radiation you want to detect is called astronomy. Like if you want to detect optical light जो आप यहाँ से दिखती है, that is called optical astronomy. अगर आप एक्सरे डिटेक्ट करना चाहते हैं, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी. अगर आप गामा डिटेक्ट करना चाहते हैं तो गामा रे एस्ट्रोनॉमी. रेडियो डिटेक्ट करना चाहते हैं तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी. सो इन बीआरसी वी आर डूइंग गामा रे एस्ट्रोनॉमी. जैसे कॉस्मिक रेज होती है तो गामा रे जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आती हैं वो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती हैं कुछ नैनो सेकंड के लिए. देन यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर टू डिटेक्ट दैट लाइट. तो बीआरसी ने 2 टेलीस्कोप बनाए हैं. वन इज द बेस टेलीस्कोप, के नाम सुना होगा आपने. बेस का नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट. इट इज लोकेटेड एट हानले लद्दाख में है, चाइना बॉर्डर पे, जिसकी ऊंचाई जो है अर्थ सरफेस से यहाँ सी लेवल से मुंबई से अराउंड 4.5 किलोमीटर. तो 4.5 किलोमीटर हाइट पे टेलीस्कोप लगा है. अगर आप देखेंगे इस टेलीस्कोप का ये अराउंड 21 मीटर है, इसकी हाइट 45 मीटर है. अगर आप उस टेलीस्कोप के पास जाएंगे, इट इज लाइक नीलगिरी बिल्डिंग, इतनी उसकी हाइट है. ये टेलीस्कोप अभी जस्ट 4 साल पहले बीआरसी ने लगाया है. और दूसरा टेलीस्कोप है माउंट आबू डायरेक्टिव टेलीस्कोप. ये पहले लगा था 97 में, अभी भी ऑपरेशनल है. अगर कभी आपके स्कूल का टूर बनता है कुछ है, यू आर वेलकम टू विजिट दिस प्लेस. आप अपने प्रिंसिपल साहब से बात करिए, इफ ही इज हैप्पी, आप ग्रुप बना के वहाँ आ सकते हो. 2-3 दिन टेलीस्कोप को देखो. इस जरूर होना फैसिलिटी है बीआरसी फैसिलिटी. अभी अगर मैं बात कर रहा था इससे मैंने बोला गामा रे हम देख सकते हैं, ऑप्टिकल लाइट हम देख सकते हैं, एक्सरे देख सकते हैं, रेडियो देख सकते हैं. तो अगर आप एक कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो इसको बोलते हैं क्रेब नेबुला. एक नेबुला
ओके, जो हमारी गैलेक्सी में है, अगर मैं उसकी एक्सरे पिक्चर ले लूँ, एक्सरे कैसा दिख रहा हो, अगर मैं उसकी रेडियो पिक्चर ले लूँ, तो अलग अलग जब हम पिक्चर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी, अलग अलग रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग वेवलेंथ में मैं देख रहा हूँ, उसको बोलते हैं मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी। दैट मीन्स मैं एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेवलेंथ में देख रहा हूँ, मैं ऑप्टिकल में देख रहा हूँ, रेडियो में, एक्सरे में, सब मिला के अगर मैं पिक्चर बनाऊंगा, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा रेडियो में ऐसा दिखेगा, अगर मैं इसको देखता हूँ एक्सरे में ऐसा दिखेगा। गामा रे में, गामा रे आपकी बॉडी को या कहीं से पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है, गामा रे को इमेज नहीं मिलेगी, आपको एक पॉइंट दिखेगा। और अगर मैं सबको मिला दूँ तो यू विल सी दिस वन। तो डिफरेंट टेलीस्कोप ऑल इन मेड इन इंडिया। ये रेडियो टेलीस्कोप है, यहाँ से आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे पुणे में, जैसे रेडियो टेलीस्कोप। ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप हानले में लगा है, ये गामा रे बेस्ड टेलीस्कोप है, ये भी हानले में लगा है। और एस्ट्रोसेट, जैसे मैंने बोला, एक्सरे जो है वो एक्सरे ऊपर से तो आती है, बट दे डोंट कम टू अर्थ सरफेस, वो ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्सरे डिटेक्ट करने के लिए आपको सैटेलाइट में ऊपर जाना पड़ता है, एस्ट्रोसेट सैटेलाइट जो है वो भेजा गया है। ये सभी इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद एक बचता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के लिए भी इंडिया में कोई फैसिलिटी नहीं बनी है, बट आई होप इन फ्यूचर न्यूट्रिनो डिटेक्शन के लिए होगा। न्यूट्रिनो बहुत इंटरचेंजिंग पार्टिकल्स हैं जो उनको हम डिटेक्ट करके अलग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, तीसरा है ग्रेविटेशनल वेव। तो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करने के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो अभी जितना मैंने बोला उसमें कि आप आंखों से देखना, डिटेक्ट करना। ग्रेविटेशनल वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी है नैनो हर्ट्ज से लेकर किलो हर्ट्ज के बीच में। तो उसी रेंज में आपका आता है ऑडिबल साउंड भी, जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। दैट मीन्स आप ग्रेविटेशनल वेव को, अगर आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ जैसा मोबाइल में सुनते हो, तो आप ग्रेविटेशनल वेव को सुन भी सकते हो। ओके, तो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करने के लिए बस मैं 5 मिनट खत्म कर रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करने के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत वीक सिग्नल होता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत आपको अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्टर बनाने पड़ते हैं। तो ओनली फ्यू कंट्रीज है, यूएस और अभी इटली में बना है डिटेक्टर। इंडिया में अभी ज्वाइन किया है, तो इंडिया में आता है जिसका लाइगो इंडिया। लाइगो एक ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी का नाम है, जिसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये महाराष्ट्र में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट। सो दिस इज द फैसिलिटी जो क्या करेगा, जैसे हमने बताया गामा रे टेलीस्कोप बेस हमने लगाया हानले में, तो गामा रे डिटेक्ट करेगा। लेकिन ये टेलीस्कोप क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करेगा। तो अगर आप टाइम लाइन जैसे मैंने बोला कि अलग अलग अगर आप चीज मेजर कर रहे हो, सबकी एक एस्ट्रोनॉमी नाम दिया गया। तो सबसे पहले कॉस्मिक डिटेक्ट हुई, तो अभी जो ग्रेविटेशनल वेव है ये 10 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमी। 2015 में 2015 में द फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव वाज डिटेक्टेड, देन वो प्रोग्राम शुरू हुआ। सो वी हैव अराउंड कवर्ड 500 years of astronomy, and from there see how many information we have. We know what is the age of universe, what is the size of universe, what is the content of universe. Many things we know from these messengers. But again I said, whatever we know, it is only identifying the 5% of the universe. The rest 95% we want to know, you have to make more detectors. So now just few last night we have talked about many things in our galaxy. This is a picture of our galaxy. Center there is a black hole that you all want to know, but and we have a very small place here in the inner orb. If you see from the side view, you will see this is a different arms you see of the galaxy, and our solar system is somewhere here. This is our solar system. It's a small place, many planets taken the solar system, and then this is our solar system. And if I see this in multi-wavelength, I see an optical, radio, or then this is how it looks. This is the real picture, how it looks in different wavelengths. Now, next thing is, daily you, from morning to evening you see sun, but how much you know about sun? So if you see, this is sun, very smiling face, but if you go inside, it is full of mysteries. We don't know how this light is emitted, what is the exact process. To know these things, you see in our space, more than 100 satellites are flying. Just only to detect sun activity, and then you can know how different processes are happening inside sun. And then next is moon. I had already Dr. Mohit had mentioned about the moon. So from sun to moon, now people wanted, because of the temperature, you know what is the temperature of sun? It's very high temperature of 6000 Kelvin temperature. So if you go there,
nothing will be left, it will all melt. So you cannot go on the sun, but you can go to the moon. So for reaching the moon, to understand what is happening on its surface, how it is made of, whether there is some actually you can live there, oxygen is there, other gases are there which are needed for your life. Then for there, that Chandrayaan was launched. First 1, 2, now third we attempted. I am trying to be successful. Our vehicle was there. So when the Pragyan rover it was landed there, it was the date already mentioned, 23rd August 2023. Then our Honorable Prime Minister Narendra Modi, he announced that that day will be celebrated as the National Space Day. So now you see many activities have been done to understand how we can understand our universe. Thank you.